Hello friends, good morning. Myself M.J. Rao, PGT Physics, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Shankarnagar, District Nanded. Now friends, in today's class we are going to discuss about the combination of resistors. Now in last periods we have seen the concept of Ohm's law. Okay? While discussing about the Ohm's law, we got a very important physical quantity, that was resistance. Now the device which is having resistance, that is called as the resistor. Okay. Now in many cases we have to combine these resistors, because in electrical circuit we require different values of resistances. Now there are some available resistors are there, but in many cases we have to combine these resistors, and therefore we have to have suitable combination of resistors. Okay. Now what are those combination and how the resistors are combined? Then after combination, how one can get total resistance, that we have to discuss now in today's class. Okay. Now we will discuss now in detail. Now the first we have to see, जैसा कि मैंने बताया कि here we are going to study about the combination of resistors. Now the how resistors are combined. Now there are two ways by which the resistors are combined. The one way, that is called as series combination of resistor. The method or first way by which there is the formation of combination of resistor, that is called as the series combination. Now what is this series combination? Now see, resistors are joined end to end. In series combination, resistors are joined end to end. Now how? See, a point is there. See, resistance R1 is connected, then next resistor R2 is connected, and then next resistor with resistance R3 is connected. Now you should know, this is the symbol of resistor. ये resistor का symbol है, ठीक है. Now there are three resistor with resistance R1, resistor with resistance R2, and resistor with resistance R3. Three resistors are connected. How? They are joined end to end. जहां एक रेजिस्टेंस खत्म होता है वहां पे दूसरा रेजिस्टेंस शुरू होता है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे खत्म हो गया वहां पे तीसरा रेजिस्टेंस, है कि नहीं, 1 to 1. दैट मीन्स इफ द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसको सीरीज कहते हैं, 1 to 1, वन आफ्टर अनदर. इसीलिए कहा है कि रेजिस्टर्स आर जॉइंड एंड टू एंड, एंड व्हाट एवर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इज ऑब्टेन्ड इज नोन एज series combination of resistors. Therefore in the figure, three resistors with resistances R1, R2 and R3 are connected between 2 points A and B. Okay. Now the second combination is there, that is called as the parallel combination. The second method to combine the resistances, resistors, these are parallel combination. Now what is this parallel combination? Parallel combination of resistors. See, resistors are connected together between 2 points. Different resistors are connected between 2 points to form a combination which is called as the parallel combination. Now see how resistances are connected. Observe. Now this resistance R1 is connected between point A and B. Then the resistor with resistance R2 is connected between A and B, and third resistor with resistance R3 is also connected between A and B. That means if the resistances are connected in this way, resistors are connected together between 2 points. How many resistors now we are using here? 3 resistors are utilized here. All the 3 resistors R1, R2 and R3 all are connected between 2 points A and B. पहला रेजिस्टेंस A और B के बीच में लगा दिया है, दूसरा और तीसरा भी, है कि नहीं. कैन वी कनेक्ट अनदर रजिस्टर? यस. यहाँ पे हम चौथा भी लगा सकते हैं, पांचवा भी लगा सकते हैं, एंड देयरफॉर मेनी रजिस्टर कैन बी कनेक्टेड बिटवीन दिस टू.
If the resistances are connected in such a way, whatever the combination is obtained, that is called as the parallel combination. Therefore, in short, now there are two types of combination of resistors. One is series combination, where resistors are connected end to end, one to one, one after another. In that case, there was only one path, and second combination, that is the parallel combination of resistors, in which the resistors are connected between 2 points. Many resistors are connected between 2 points. Here there will be the different path for the current, different path for the flow of charge. Then such a type of a combination is known as parallel combination of resistors. Okay, now we will discuss the series combination and parallel combination in detail, and we will try to obtain the formula for the total resistance if the resistors are connected in series combination, and second, if the resistors are connected in parallel combination. Now the first we will see series combination of resistors. Okay. Now look at the diagram. Here the three resistors with resistances R1, R2, R3 are connected in series between 2 points. कौन से point A and B. Now 2 point A and B, battery is connected along with this switch. Now when we connect the battery, that means it will produce a potential difference across A and B, because the ends positive terminal of battery is connected to point A and the negative terminal of battery is connected to point B. Therefore it will produce a potential difference. Okay. Now suppose V is the potential difference प्रोड्यूस बाय दिस बैटरी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. बराबर है कि नहीं. मतलब ए और बी के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया है, वी. नाउ बिटवीन ए एंड बी, ये देखो पॉइंट ए और बी के बीच में अभी हमने क्या तीन रेजिस्टर्स लगा दिए. तीन रेजिस्टर्स लगा दिए मतलब यहाँ पे अब इसके तीन पार्ट हो गए. एक पार्ट में R1 लग गया, दूसरे पार्ट में R2 लग गया, तीसरे पार्ट में R3 लग गया. ए और बी के बीच में टोटल पोटेंशियल कितना है, वी. इसलिए ये जो पोटेंशियल है क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. क्योंकि ए बी ये सिंगल पार्ट है, इस सिंगल पार्ट के हमने तीन पार्ट किए. और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द डिफरेंस ऑफ ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट. तो ये टोटल पोटेंशियल यदि वी है तो यहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगा, यहाँ पे ये इस पार्ट के अक्रॉस पोटेंशियल आ जाएगा, इस पार्ट के अक्रॉस पोटेंशियल आ जाएगा. और इसीलिए हम ये पोटेंशियल प्लस दिस पोटेंशियल यदि तीनों की यदि सम करेंगे तो दिस शुड बी इक्वल टू वी. समझ में आ रहा है कि नहीं. देयरफॉर वी कैन से दैट नाउ व्हाटएवर द टोटल पोटेंशियल इज देयर, it will divide it into 3. Therefore some potential will take place across resistance R1, another across resistor R2, across resistance R3. Okay. Now current through each resistor is same but potential difference is different. Current through each resistor is same पर potential difference is different. जैसा कि यहाँ पे बताया करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम. क्यों सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ से करंट निकलेगा और करंट ऐसा जाएगा. जब भी करंट बैटरी की तक वापस आता है तो हाउ मेनी पाथ्स आर देयर फॉर करंट, एक ही पाथ रहेगा. इसलिए करंट जितना करंट बैटरी से निकलेगा सारा का सारा करंट इसी पाथ से फ्लो होकर बैटरी को वापस आएगा. एंड देयरफॉर नाउ करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट. पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, V1, V2, V3 अभी हमने देखा. ठीक है. अभी देखो here current I is there which is drawn from the battery. Same current I will flow here through R1, same current I will flow through R2 and same current I will flow through R3. और यहाँ से I वापस आएगा और बैटरी को जाएगा. बराबर है कि नहीं. मतलब तीनों रेजिस्टेंस में से करंट कैसा है, सेम है I, और लेकिन पोटेंशियल कैसा है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, डिफरेंट है. और इसीलिए कहा है कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट. ठीक है. नाउ वी हैव टू अप्लाई ओम्स लॉ टू ईच रजिस्टर्स. हर रजिस्टर्स को ओम्स लॉ अप्लाई करना है. ओम्स लॉ अप्लाई करना मतलब क्या है, व्हाट इज ओम्स लॉ. ओम्स लॉ इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन V इक्वल टू IR. V equal to IR. This equation, बराबर कि नहीं, V is proportional to I, therefore V is equal to R है. That means we have to apply this relation to this first resistor, second resistor, third resistor. Therefore, if we apply the Ohm's law, then we can write V1 is equal to IR1. What is V1? PD across R1
how much current is flowing? I, and with resistance R1. Therefore V is equal to IR1 according to Ohm's law. That means applying Ohm's law to R1, R2 and R3, we will get these three equations. V1 equal to IR1, V2 equal to IR2, V3 equal to IR3. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि दिस इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. व्हाट इज ओम्स लॉ? V इक्वल टू IR. देयरफॉर V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3. ठीक है, तो थ्री इक्वेशंस फॉर थ्री रेजिस्टर्स वी हैव रिटन हियर. नाउ क्या बता रहा है लेकिन, बट V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जैसा हमें पहले डिस्कस किया, जो टोटल V है इसके तीन पार्ट है, V1 प्लस V2 प्लस V3. ठीक है, अब हमको V1 की वैल्यू मालूम है, V2 की है, V3 की, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे. देयरफॉर इसकी वैल्यू यदि रखते हैं, देयरफॉर V इज इक्वल टू IR1 V2 IR2 और V3 IR3. ठीक है, इसको यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं, देन हियर I इज देयर, I विल कॉमन फॉर ऑल. देयरफॉर जस्ट टेक I कॉमन. यदि कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में रहेगा R1 प्लस R2 प्लस R3. देयरफॉर V इज इक्वल. ठीक है, इसको हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं. जस्ट टेक दिस I टू दिस साइड, ये I जरा इधर ले लो. देन व्हाट इट बिकम्स V अपॉन I. ये V अपॉन I हो जाएगा इक्वल टू क्या रहेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3. ब्रैकेट में रहा R1 प्लस R2 प्लस R3. लेट इट बी आवर इक्वेशन नंबर 1. थोड़ी देर के लिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे. ओके, नाउ what we have to consider, the whole combination act as a new resistance. Now actually this is the series combination of three resistors is R1 R2 R3. अब हमको इमेजिन करना है कि अभी एक कॉम्बिनेशन है, एक नया रेजिस्टेंस एक्ट करेगी. दिस कॉम्बिनेशन विल जस्ट एक्ट एज ए न्यू रेजिस्टेंस. बराबर कि नहीं? तो ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है भूल जाओ, हम करेंगे कि यहाँ पे कोई तो एक नया रेजिस्टेंस हो गया वो कॉम्बिनेशन का. ठीक है, और जिसकी वैल्यू है RS. होल कॉम्बिनेशन एक्ट एज ए न्यू रेजिस्टेंस RS. ठीक है, तो हमको एक नया रेजिस्टेंस मालूम हो गया कॉम्बिनेशन का RS. देन हाउ मच PD इज देयर नाउ अक्रॉस कॉम्बिनेशन? पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कितना PD होगा? V, क्योंकि V इज द PD बिटवीन A एंड B, और ये है पूरी हमारी कॉम्बिनेशन A और B के बीच में. इसलिए टोटल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस PD कितना रहेगा? V रहेगा. हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉम्बिनेशन? ये I जा रहा है, I जा रहा है, I जा रहा है, मतलब A के पास कितना करंट एंटर कर रहा है I, और B से कितना करंट निकल रहा है I. मतलब कॉम्बिनेशन में कितना करंट एंटर कर रहा है I, और बाहर कितना निकल रहा है I. इसका मतलब व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉम्बिनेशन? I itself. देयरफॉर हमको PD मालूम होगा. PD अक्रॉस कॉम्बिनेशन इज V and current through combination is I. Therefore now we can apply Ohm's law to the combination. We can apply Ohm's law to the combination. Then if I apply the Ohm's law to the combination, we will get V equal to IRS. V PD across combination, I current through the combination, and RS the resistance of a whole combination which we have imagined. बराबर कि नहीं? From that here we can write, ये I यदि हम इधर लाएंगे तो we will get V upon I equal to RS. Let it be equation number 2. अभी जरा इक्वेशन 1 की तरफ देखो और इक्वेशन 1 2 see, this is V upon I equal to this thing, this is V upon I equal to RS. Therefore we can conclude from now equation 1 and 2. क्या conclude कर सकते हैं from equation 1 and 2? What will be our conclusion? Conclusion is that this RS must be equal to this thing. Therefore RS equal to R1 plus R2 plus R3. Now what is actually RS? RS is the resistance of that whole combination, whole series combination. R1 R2 R3. R1 is the individual resistance, R1 first resistance, second, third, है कि नहीं? That means simply the net resistance is nothing but it is a sum now, R1 plus R2 plus R3. ठीक है, now can we connect another fourth resistance here and can we apply the same process? Yes. चौथा रेजिस्टेंस यदि हमने लगाया था, it becomes now plus R4. पांचवा रेजिस्टेंस है तो प्लस R5, और इसलिए यदि हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है, कितने भी है 10 100, बराबर है कि नहीं? then in general we can have the formula, and what is that formula now? We can write the formula RS equal to R1 plus R2 plus R3 plus plus finally Rn. n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है. ठीक है, और दिस इक्वेशन इटसेल्फ नाउ इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. दिस इज द लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. नाउ वी कैन स्टेट द लॉ. नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन. इसको हम स्टेट कर सकते हैं. देखो किस प्रकार. व्हाट इज दिस इज द नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ विच कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस
of all individual resistors. It is the sum of resistances of all the resistors, है कि नहीं? तो इन जितने भी रेजिस्टेंसेस हमने लगाए इन सब की सम जो होती है दैट इज इक्वल टू द नेट रेजिस्टेंस. इसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको नेट रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको टोटल रेजिस्टेंस कहते हैं. ये सारे वर्ड यूज होते हैं, बराबर है कि नहीं? देयरफॉर नेट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. ठीक है. तो जनरली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि प्रूव इट. तो इन दिस वे वी हाउ टू प्रूव इट. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ द सेकंड कॉम्बिनेशन, that is parallel combination of resistors. Parallel combination of resistors. ठीक है. Now see in figure, three resistors with resistance R1, R2, R3 are connected parallel between points A and B. और ऑलरेडी हमने देखा है कि नहीं, ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे है, ईच आपस में पैरेलल है. दे आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स, बराबर कि नहीं? नाउ अगेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड विद हेल्प ऑफ बैटरी. A point is connected to positive terminal of battery and B point is connected to the negative terminal of the battery. ठीक बैटरी. ठीक है. Now again it is said that potential difference across each resistor is same but current is different. Current is different. और होना ही चाहिए क्योंकि now this battery is connected between A and B. Battery is connected between A and B. उसी A और and B के बीच में हमने R1 कनेक्ट किया है, उसी दो पॉइंट के बीच में हमने R2 कनेक्ट किया, उसी दो पॉइंट के बीच में हमने R3 कनेक्ट किया. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है A और B के बीच में V है, वही पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस रहेगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस R2 के अक्रॉस रहेगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस R3 के अक्रॉस रहेगा. इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम बट करंट इज डिफरेंट. नाउ करंट इज डिफरेंट. अभी करंट किस प्रकार डिफरेंट होता है देखो. ना सपोज ये बैटरी में से कितना करंट निकलता है, I करंट निकलता है. देन जैसा यहाँ पे आएगा, ये पूरा का पूरा आया नहीं क्योंकि यहाँ पे अभी इसको कितने ब्रांचेस, कितने पाथ दिख रहे हैं, कितने वे दिख रहे हैं, 3. इसीलिए टोटल करंट यहाँ तक तो आएगा. यहाँ से उसका डिवीजन शुरू हो जाएगा, बटना शुरू हो जाएगा. कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, बराबर है कि नहीं? एंड देयरफॉर some current will flow here, some current will flow here, some current will flow here. Suppose current I1 is flowing from R1, I2 is flowing from R2, I2 is flowing from R2 and I3 is flowing from R3. ये तीनों करंट यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर सम हो जाएगी और बाहर क्या निकलेगा? I निकलेगा. मतलब I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगी नहीं, क्योंकि ये I1, I2, I3 I के पार्ट है. या जब ये तीनों करंट यहाँ पे आ जाएंगे, मिल जाएंगे, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I होगा और बैटरी को वापस जाएगा. ठीक है. तो दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट वी हैव टू रिमेंबर अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन. क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज ऑलवेज सेम बट करंट इज डिफरेंट. और सीरीज में क्या रहता है? सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहता है. वो एक्चुअली टेस्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन की. ओके. नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ, वी विल फॉलो द सेम प्रोसेस हियर जो हमने सीरीज का में. अप्लाइंग ओम्स लॉ टू ईच रेजिस्टर. हर रेजिस्टर्स को हमको ओम्स लॉ अप्लाई करना है. ठीक है. अभी ओम्स लॉ क्योंकि हमको I1, I2, I3 अलग अलग है, इसलिए उसकी वैल्यू हमको निकालनी है. पर I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, क्योंकि हमको मालूम है ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR. देयरफॉर I इज इक्वल टू V अपॉन R. देयरफॉर यार करंट कितना है? I1. देयरफॉर क्या होगा? I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इक्वल टू V अपॉन R3. ठीक है. ये कैसा है? तो दैट इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. V इक्वल टू RI, देयरफॉर I इज इक्वल टू V बाय R. इसलिए हमने लिखा है I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3. ठीक है. बट क्या लिखा है? वी नो दैट. बट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. अब हमारे पास I1, I2, I3 की वैल्यू है. ठीक है. तो इसमें उसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू रखो V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. यहाँ पे V कॉमन है सबके लिए, इसलिए वी विल टेक V कॉमन. देयरफॉर इट बिकम्स नाउ 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R. 1 अपॉन R3 है. ठीक है. R3 होना चाहिए. 1 अपॉन R3. ठीक है. नाउ just take this V this side.
ये v इस साइड ले लो, I अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, ठीक है। अब जैसा कि हमें यहाँ पे हमको कंसिडर करना है कि होल कॉम्बिनेशन एक्ट्स एज ए न्यू रेजिस्टेंस। अभी ये पूरी की पूरी कॉम्बिनेशन एक नया रेजिस्टेंस एक्ट होगी। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस अब हम भूल जाएंगे, है कि नहीं। यहाँ पे कोई तरह हमको एक इमेजिनरी नया एक रेजिस्टेंस कंसिडर करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन का। सपोज दैट इज आर पी, पी मतलब पैरेलल के लिए, बराबर कि नहीं। नाउ व्हाट इज द पीडी अक्रॉस कॉम्बिनेशन, वी, पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस का पीडी कितना होगा, वी होगा। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉम्बिनेशन, आई, क्योंकि कॉम्बिनेशन ए से शुरू हो गई, बी से खत्म हो गई। ए के पास मतलब कॉम्बिनेशन में टोटल करंट कितना एंटर हो रहा है, आई, और कॉम्बिनेशन में से बाहर कितना करंट निकल रहा है, मतलब एक्चुअली कॉम्बिनेशन में करंट कितना जा रहा है। इसीलिए हमको पीडी मालूम होगा कॉम्बिनेशन के अक्रॉस का, और उसमें का करंट भी मालूम हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर नाउ वी कैन अप्लाई अगेन ओहम्स लॉ, देयरफॉर अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द कॉम्बिनेशन। यदि हम कॉम्बिनेशन को ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर पी, होगा कि नहीं करंट। नाउ टेक दिस v दिस साइड, देयरफॉर अगेन इट बिकम्स I by v is equal to 1 upon RP। देखो अभी लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन 2 and 1 देखिए, दिस इज I by v, दिस इज आल्सो I by v, देयरफॉर वी कैन नाउ कंक्लूड फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट इज दैट, कि दिस 1 upon RP इक्वल टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3 होना चाहिए कि नहीं। देयरफॉर 1 upon RP equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Okay. Now, if can we connect fourth resistance, fifth resistance? Yes. In this way, we can connect any number of resistors. Therefore, in general, if I consider the n number of resistors, then for n number of resistors, we can write now the law like this: 1 upon RP equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon Rn. ठीक है, and therefore now this is nothing but this is the law of parallel combination of resistances when number of resistors are connected in parallel. Now can we state this law from this? Yes. Now what is Rp? Rp is the net resistance of a parallel combination. Then what is 1 upon Rp? 1 upon Rp is the reciprocal of the net resistance. R1 resistance 1 upon R1, its reciprocal, and therefore now in word we can put this law as, what is it? The reciprocal of the total resistance of a parallel combination is always equal to the sum of reciprocals of each individual resistance. Each individual resistance, है कि नहीं? तो actually it is a reciprocal of total resistance is always equal to the sum of the reciprocals of each individual resistance, बराबर है कि नहीं? And therefore this is the statement. This is called as the law of parallel combination of resistance. Okay, so now we got two important laws. One is law of series combination and another that is the law of parallel combination of resistance. Okay, now to clear the concept of these laws, here we will study example here. See, the circuit diagram given below shows the combination of three resistors R1, R2, R3. This is R1 4 ohm, R2 3 ohm, R3 6 ohm. Find number 1 total resistance of the circuit, total resistance of the circuit, total current flowing through the circuit, and potential difference across resistance R1. Okay. Now this is the series combination. This is the combination of three resistances. Now see, ये पूरी combinations, ये इसका starting point और ये इसका ये point. Now the whole the combination is connected to this battery. इसका मतलब एक combination का जो first point है या starting point है, जहाँ पे भी potential difference apply किया, मतलब यहाँ और यहाँ हम ये दो point consider करेंगे, तो battery is connected here, battery is connected here. Therefore, this is the starting point and this is the end point of this combination. Therefore, this whole combination is effective between now these 2 points, ये और ये या फिर ये और ये. ठीक है, therefore जो टोटल रेजिस्टेंस हमको निकलेगा मतलब ये पूरे कॉम्बिनेशन का निकलेगा. ठीक है, नाउ वन बाय वन वी हैव टू सॉल्व. फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. पहले हम वन बाय वन कैलकुलेट करें. नाउ फर्स्ट टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हमको देखना पड़ेगा. अभी देयर आर थ्री रेजिस्टेंसेस. आउट ऑफ दैट सी दिस 3 ohm and this 6 ohm,
दे फॉल्स पैरेलल टू ईच अदर, बराबर कि नहीं। और इसीलिए अभी R2 and R3 are in parallel. R2 and R3 they are in parallel. Therefore, first we have to solve this parallel combination. ठीक है। Therefore, we have to apply which law? Law of parallel combination. 1 upon Rp equal to 1 upon R2 plus 1 upon R3 है कि नहीं। ये दो रेजिस्टेंसेस को हमको ये लॉ लगाना है, ठीक है। पुट द वैल्यू, therefore 1 upon 3 plus 1 upon 6 इक्वल टू, ठीक है। ये 3 और 6 दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 6। फिर 3 डिवाइडेड 6 से 3 से 6 को डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? 2। 2 इंटू 1 2 2 प्लस ये 1 है कि नहीं। यहाँ पे हम सम कर रहे हैं सिंपली। देयरफॉर एलसीएम 6 और न्यूमरेटर में आएगा 2 plus 1। फाइनली क्या बनेगा? दिस इज 2 plus 1 3/6 इक्वल टू 1/2 होगा कि नहीं। बट दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 upon RP। 1 upon RP equal to 1/2। Actually this is 1 upon RP but we require RP क्योंकि हमको नेट रेजिस्टेंस निकालना है। देयरफॉर हमको क्या करना पड़ेगा? इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। देयरफॉर 1 upon RP equal to 1/2। देयरफॉर RP equal to कितना हो जाएगा? 2 ohm। and this is the now answer. What is that? Answer for the first total resistance of the circuit is how much? Sorry this is not answer, this is only the total resistance of this combination, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नाउ सी, अब ये दो रेजिस्टेंस हमने सॉल्व करने के बाद इसका एक ही रेजिस्टेंस बना। अब ये नया रेजिस्टेंस बनेगा, ए रेजिस्टेंस और ए रेजिस्टेंस। अब हमारे पास दो रेजिस्टेंस आ गए। अब देखिए नाउ दिस आरपी जो अभी हमने सॉल्व किया एंड दिस R1 ये रेजिस्टेंस, हाउ दे आर? दे विल बी इन सीरीज विथ ईच अदर। ये रेजिस्टेंस और ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ रेजिस्टेंस, ये दोनों कैसे आएंगे? सीरीज में आएंगे। देयरफॉर आरपी एंड R1 आर इन सीरीज। इसलिए हमको यहाँ पे कौन सा लॉ लगाना पड़ेगा? लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। RS इक्वल टू दिस R1 प्लस दिस न्यू रेजिस्टेंस, व्हाट इज दैट? RP। R1 प्लस RP। R1 कितना हमारा? 4 ओम प्लस ये हमने सॉल्व किया कितना है? 2 ओम। 4 प्लस 2 6 ओम, ठीक है। अभी आ जाएंगे हमको क्योंकि हमने पहले ये कॉम्बिनेशन सॉल्व की, इसके बाद में ये नया और ये। अब हमको मिल जाएगा कौन सा रेजिस्टेंस? टोटल। एंड देयरफॉर नाउ the total resistance of the circuit is equal to 6 ohm, 4 plus 2 6 ohm, and this is the answer of now first total resistance of the circuit is 6 ohm. Okay, now move towards second case. What is that? total current flowing through the circuit. हमको अभी total current flowing through the circuit निकालना है, ठीक है। now to calculate the total current flowing the circuit, which formula we have to use? current is equal to potential difference upon resistance, total current। अब ये टोटल करंट है तो ये भी क्या होगा? इट इज पीडी अक्रॉस कॉम्बिनेशन एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। नाउ हाउ मच पीडी अक्रॉस कॉम्बिनेशन इज देयर? पीडी अक्रॉस कॉम्बिनेशन, ये पूरी कॉम्बिनेशन देखो बैटरी को अटैच किए और व्हाट इज द पीडी ऑफ दिस बैटरी? पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोड्यूस करे? 12 वोल्ट। देयरफॉर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पीडी अक्रॉस कॉम्बिनेशन? इट विल बी 12 वोल्ट। रेजिस्टेंस अभी हमने कैलकुलेट किया कितना? 6 ओम। और इसीलिए अभी, ठीक है, we have to put the value V equal to 12 volt, R is equal to 6 ohm, it becomes 2, but current therefore it will be 2 ampere. Therefore the answer for the second will be total current flowing through the circuit is 2 ampere. Okay, now third we have to calculate PD मतलब potential difference across R1. we have to calculate the potential difference across R1, ठीक है। और थोड़ा हम फिगर पर चले जाएंगे। Just see the figure. We have to calculate the potential difference across R1. इसके अक्रॉस इसमें से कितना करंट जा रहा है हमको मालूम चाहिए और इसका रेजिस्टेंस हमको मालूम है। इसमें से कितना करंट जा रहा है कि नहीं। नाउ हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट? अभी हमने कैलकुलेट किया 2 एम्पियर कैलकुलेट किया है, बराबर है कि नहीं। अभी जैसा ये 2 एम्पियर करंट ऐसा जाएगा, ये 2 एम्पियर करंट 4 ओम से एंट्री करेगा और यहाँ से उसके दो भाग हो जाएंगे। मतलब 4 ओम में से भी कितना करंट जा रहा? उतना ही करंट जा रहा जितना पूरे कॉम्बिनेशन पे जा रहा है, क्योंकि पूरे कॉम्बिनेशन की एंट्री पर ही ये 4 ओम है। तो जो भी करंट कॉम्बिनेशन में एंटर करेगा वही करंट 4 ओम में से जाएगा। एंड देयरफॉर नाउ हियर टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 2 एम्पियर। टू कैलकुलेट द पीडी अक्रॉस R1 नाउ वी हैव टू सी करंट फ्लोइंग थ्रू द R1 इज 2 एम्पियर। टोटल करंट कितना है? 2 एम्पियर है, इसीलिए
R1 में भी कितना करंट जाएगा, 2 एम्पियर जाएगा, हमने डायग्राम से अभी देखा है, ठीक है। Therefore now we have to calculate PD across R1. Which formula we have to use? Again V equal to IR, that formula we have to use. Put the value of I हम कितना रखेंगे, 2 एम्पियर, R उसका रेजिस्टेंस कितना है, 4, 2 into 4 कितना आ रहा है, 8 वोल्ट, and therefore now the PD across that 4 ohm resistor, that will be 8 volt, बरोबर है, and therefore this is the answer now. So in this way we have solved that example, है कि नहीं, calculated the total, we have calculated total resistance of the circuit, total current to the circuit, and also the potential difference across that resistance, that was the 4 ohm, ठीक है। Now there is the question for homework. See, the figure is given there, 1 2 3 4 5 6, there are 6 resistances, they are connected like that, ठीक है। Let it be resistance R1, R2, R3, R4, R5 and R6, उनकी वैल्यू दिए। What is the example? What is the resistance between A and B in the figure shown? तो आपको ये दो जो पॉइंट है A और B, इसके बीच में ये टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का, ठीक है। तो यू हैव टू अप्लाई द लॉ ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जो कुछ भी हमने इस पीरियड में अभी पढ़ा है, बाय यूजिंग द नॉलेज ऑफ दैट थिंग, यू हैव टू सॉल्व दिस एग्जांपल एज ए होमवर्क, ठीक है। देन सर्च फॉर मोर एग्जांपल व्हिच इज बेस्ड ऑन the combination, series combination and the parallel combination of the resistors. Okay, thank you.